CM Sahab, starring the superstar there, Harbhajan Mann and Gurpreet Guggi, and it's slated to release in 2015 worldwide. I'd love to call you up on stage, sir, and hear from you about this project. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, Premji, Bruna, Gautam, Saisha. Thank you, everyone. फिल्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं. आई थिंक हम सभी में एक कॉन मैन छुपा है जो हमारे अंदर है. छोटे छोटे कॉन्स हम लोग करते रहते हैं अपने जीवन में भी, अपनी रियल लाइफ में. तो सभी आर्टिस्ट, जितने भी कलाकार हैं, सब लोग कौन कर रहे हैं, कौन किसको कौन कर रहा है, ये फिल्म है. आई थिंक दैट इज़ द बेसिक ब्रीफ ऑफ द फिल्म, एंड आई होप दैट वी अचीव व्हाट वी वांट. सो आई थिंक दैट्स इट. आई थिंक वी मेट ऑलमोst 7-8 months back, almost 9 months, and in 9 months this baby is going to start. So we started looking at scripts, looking at thoughts. बहुत स्क्रिप्ट सुनी, बहुत. फिर कहीं सर को मज़ा नहीं आ रहा था, कहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. वी नॉट एबल टू कम ऑन द राइट ट्रैक, एंड आई थिंक एक राइट ट्रैक हमें मिला. सर बताएंगे. When I met Vipin first time, because I believe in fresh contents, because fresh people will show their talent, and I was also since after meeting Vipin Parashar and after watching his movie No Exit, I realized he is the right person who will do justice with our movie, because a script which I had already in my mind, but we did a lot of changes after listening to the script, and Vipin Parashar has played a very important role in making this script so interesting. So because of this script we are together here, and he is very passionate and very serious about this movie, and we all want to do something great work. Yeah, and I think Vishal is there who wrote the film. He's got the credit to write, and there is a Vaibhav Bajpai who gave the words to the film. I think they're going to perform now, April onwards. So butterflies are there. So let's see where we'll achieve. So I think that's enough. Thank you, sir. Thank you, and we hope this film takes flight and it does mentions of pursuing her dreams, and here it is. And of course, there's Miss Bruna Abdullah, who needs no introduction whatsoever. And what I'd like to do at this time is call you guys on stage and have us talk to you. Have you talk to us about what the experience is so far been? I know you haven't begun yet, but tell us something. Why don't you come on stage, please? Thank you. How has it been for you? Congratulations, first of all. And to start with, there's some little birdie told me that there were almost 100 films that were offered to you, but you kind of zeroed down on this one. So I'm very intrigued to know, and I'm sure everybody is, what made you sort of stick with this one in comparison to the others? See, I got to meet so many people. At the same time, I'm still meeting people. अभी भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ, और आगे भी कुछ projects हैं जो मैं अभी lined up है, जिसके लिए मैं me and my team are working on it. So, but ये जो project मेरे सामने आया, तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि script अच्छी थी पहले तो, and लोग अच्छे थे. The way they came up to me and wanted me badly for the film. So जब मैंने पढ़ना start किया तो मुझे अच्छा लगा कि the people are really good, and why not to shake hands with them, So then I made my mind to work with them, and now today we all are here to announce. Fantastic. Well, I wish you all the best, and I want to ask Saisha the same question. Tell me, is this a dream come true for you? I know it's a wonderful script from what we gather, but tell us more. Hi, good evening, everyone. So finally the day has arrived for me. I'm very excited. Before I say anything, I would like to take this opportunity to thank everyone in my team. First and foremost, Mr. Ravinder sir, who is producer and creative director of my film. So without your support, this wouldn't have been possible. Thank you. Then of course my director, who's been very supportive, very kind and motivative. Thank you, Vipin sir. And all my co-actors. You are not just the co-actors, you all are an inspiration for me. Legend of Indian cinema, Prem Chopra ji. Then my co-star, obviously,
I mean, it's a pleasure to work with him. Beautiful Bruna. So yeah, I mean, I'm very excited. And coming down to my experience till now, I've already worked with Vipin sir in his previous film. So I've worked with in his album. So I knew them from before. And they were very sure that, I can pull the character and I deserve to be where, they have placed me. Awesome. So that's how it started 4-5 months back. They auditioned me, they liked me, and they got me. And it's a wonderful platform. It's a wonderful platform. Thank you, everyone. Thank you, Sasha. Thank you. All the best. And a couple of words from you about how it is to be associated with the team of people here. And So as you all know, this is not my first, but still I'm really excited. I love what I do, and I couldn't be more honored to be here with you guys today. I know it's going to be awesome. I want to make this fun, so I'm really excited. I'm really excited to work with such senior actors, and the director himself, Vipin, that put his trust on me for this character, and I am going to give my 100%. I'm really excited. It's just the beginning, so there's really nothing much we can talk about now, but let the journey begin. awesome. I'm really All the happy. best. All the best. I'm now going to request Mr. Vipin and Mr. Singh to come on stage with Mr. Prem Chopra and tell us a bit about Sir being part of the project, and then we'll go on to unveiling the logo of the film. So I'd actually like to ask you how is what I asked them, and a question for the cast of the film in general is how is it to be associated with this group of It's people? and- wonderful, wonderful, wonderful. I'm very glad to be here. Why? Because the whole team is so much involved, and that is very important when you make a film. That everybody is very passionate and obsessed with the making of this film. And I'm definitely sure, because of the script that I have gone through or been narrated, this is very, very interesting, very good. वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं कितना शरीफ आदमी रहा हूँ, लेकिन इस फिल्म में मैं ज़रा अलग किस्म का रोल कर रहा हूँ, जो कि मुझे बड़ा एक्साइट किया जिन्होंने. और आप देखिएगा कि ये चेंजेस आएंगी इस फिल्म में, जिससे बहुत लोगों के कैरियर जो हैं वो अलग अलग किस्म की तरफ जाएंगे. वो कहते हैं ना कि जैसे इन्होंने कहा कि वो जाए शमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, अरे मायूस ना होना, इरादे ना बदलना, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है. तो ये देखिए, ये जो है ये मेहनत का नतीजा होता है. बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं कि लेकिन उनको सही ब्रेक जब मिलता है तो उनका भी आगाज़ शुरू हो जाता है. I wish all the best to everyone, and thank you, all of you, very supporting, and thank you so much for everything. Thank you so much, sir. I'd request Sir, Mr. Singh and Sir to please do the honors and unveil the logo, please. अच्छा, सो सिंस गौतम आपने बिग बॉस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इन द एंड यू आर द विनर, सो वहाँ का एक्सपीरियंस कितना काम आने वाला है यहाँ पे? वहाँ का एक्सपीरियंस यार आई फील मेरे लिए तो बहुत रियल था, और जो हुआ एक फ्लो के साथ हुआ, कुछ भी मेडअप तो था नहीं वहाँ पे, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो. आई वॉज नॉट एक्टिंग इन द शो. या फन किया, मस्ती की, मजाक किया, एंड बैक ऑफ द माइंड देयर वाज समथिंग कि यार एंटरटेन भी करना ही है लोगों को. चलो अगर कोई लड़ेगा तो लड़ाई में भी एंटरटेन करते हैं, तो वो माइंड में था. और यहाँ पे देखा जाए तो जब मैंने सुना फिल्म के बारे में, सो देयर इज़ अ लॉट टू प्ले. सो दिस गाय इज़ अ कॉन गाय, सो काफ़ी खेलता है पूरी फिल्म के अंदर, और तो मुझे अच्छा लगा, कई किरदारों में आता है. तो आई थिंक उसी को मैं यहाँ पे थोड़ा यूज़ करूँगा, और उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी. सो आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट इन फ्यूचर व्हेन वी ऑल विल बी रिलीजिंग द फिल्म.
Can we have a huge round of applause, please? Anything you would like to say as friends of the team? Mr. Morani, for instance, any words that you might have for the team, for wishes or... I think they have a fantastic combination, and for anything successful, all you need is a good vision and hard work. I think the team has done fantastic. They're loving the script, and I would like to congratulate all of them and wish them all the best. Also, it's Gautam's first film. I think everybody's looking forward to see him. He's a massive craze these days. So, and I think he's signed 3 films with Balaji. This is the 4th, and another few films he's looking at. So I think wish him all the best, and all of you all the best. Thank you so much. इस फिल्म का म्यूज़िक मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बहुत अच्छा म्यूज़िक आपको पसंद आएगा और गाने हिट होंगे इसके सारे. We have already recorded the music, but today we don't want to disclose. And on this music we have worked for the last 8 months, and very nice music, very soothing music, even foot tapping music you will find. I can assure you, you will all like this the music of this movie. हेलो प्रेम जी, आपने हर तरह की फिल्में कर चुके हैं. अगर आपके पास कोई भी फिल्म मेकर आता है फिल्म बनाने के लिए, तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है आपको हाँ बुलवाने के लिए? जी हाँ, मैंने हर किस्म के रोल किए हैं. अभी ज़रा ज़्यादा ही शरीफ आदमियों का रोल कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप इस रूप में भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे. आप पिक्चर डिपेंड करती है, कमर्शियली जब सक्सेसफुल होती है तो हर एक्टर, आजकल तो लोग इस कदर हो गए हैं, दे आर अवेयर ऑफ the performances, and they do not differentiate or they do not typecast a certain actor. He is playing a bad man, so he will always be a bad man. If the same bad man plays a good role, good man's role, and his performance is very convincing, so they accept it also. आज के दौर में विलन्स, जिस तरह के विलन्स आ रहे हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? कौन से डॉन्स? विलन्स, हर तरह के विलन्स जो भी हैं मेनस्ट्रीम सिनेमा में. देखिए, सब ने अपनी अपनी जगह बनाई है और बहुत उम्दा काम किया है बहुत लोगों ने. और जो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट होता है, देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट बिहाइंड. It's not an easy job to stay in this show business because of somebody's recommendation or somebody's contacts. It is your talent which helps you to go ahead. It's your talent which gets you more work. Thank you. नहीं, कुछ अलग करेंगे, साथ साथ अपना देखते हैं अगर कुछ अलग सामने आता है. सो एक आध प्रोजेक्ट है जो कुछ अलग भी है, बिल्कुल हटके है, थोड़ा वो भी मैं कर रहा हूँ. उसके बारे में तो अभी बिल्कुल बात नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आपको शायद जब व्हेनेवर दोज पीपल विल टेल मी अबाउट इट कि व्हेन आई कैन डिस्क्लोज इट, देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. तो वो थोड़ा अलग है और वो तो आई थिंक पूरा देश जाएगा देखने, वो फिल्म ऐसी होगी. गौतम, आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू कि अगर टेलीविजन से वापस कोई बड़ा ऑफर आता है, सो वुड यू वांट टू गो बैक टू टेलीविजन? ऑफ़र आए हैं अभी मुझे टेलीविज़न से, और अभी झलक का भी मुझे ऑफ़र आया था, और एक जी का होस्टिंग करने के लिए भी आया था. बट अभी क्या है, अभी एक लंबा शो करके आया हूँ, तो बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए. एंड ऑफ द डे ज़्यादा ऑफ़र इतने भी टीवी से नहीं आ रहे, बिकॉज दोज पीपल ऑल्सो वांट मी टू गेट इनटू फिल्म्स ओनली. सो व्हाई नॉट, यू नो. सो आई एम गेटिंग फिल्म ऑफर्स ओनली, सो आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड्स दैट ओनली. अभी तो फिलहाल टीवी का खुद वो लोग भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं यार थोड़ा तू फिल्मी है, तू फिल्म कर, और हम तेरे को एज ए हीरो देखना चाहते हैं. तो ये उनका बड़प्पन है कि वो मेरे को एज ए हीरो देखना चाहते हैं, और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि सबका सपोर्ट है. आई एम रियली हैप्पी. Sorry to have interrupted you. We have with us Yogesh Lakhani ji here. I would like him to come on the stage. Give him a big applause. आपने अभी कहा कि आपका बहुत अच्छा किरदार है फिल्म के अंदर, और हाल ही में शशि कपूर साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया. आपने भी बहुत से फिल्में की हैं उनके साथ, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, लेकिन अब फिर बताना चाहता हूँ कि शशि कपूर साहब के साथ मेरी फिल्मी कैरियर ऑलमोस्ट शुरू हुआ था आमने सामने फिल्म में. तो ही वॉज
a very, very cooperative actor, and he was totally a team player. तो जब हम लोग तो खैर बिल्कुल नए थे, ही वॉज ए सुपरस्टार एट दैट टाइम, लेकिन हम अरे इतने करीब आ गए थे, मजाक चलता था हमारा बहुत, लेकिन वो बड़े सीरियस हो जाते थे, मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाता था उनसे। तो साहब मैं किस्सा बताता हूँ आपको कि मेरी फर्स्ट पिक्चर जो थी, वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स ऑफ माय करियर वाज आमने सामने। तो उसकी शूटिंग के सिलसिले में हम गए वैसे कश्मीर, श्रीनगर में। तो शर्मिला टैगोर जी और शशि और मैं 3 आर्टिस्ट थे। मैं उसमें आई वाज प्लेइंग द बैड गाय। तो लोग आते थे, वो ऑटोग्राफ लेते थे शशि कपूर से, शर्मिला टैगोर से, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती थी, तो ख्याल करते थे, उनको याद नहीं रहता था ये कौन आदमी है। तो वो मेरे पास आके ऑटोग्राफ आप भी दे दीजिए, तो मैं बहुत खुश होता था। ऑटोग्राफ देने लगता था, सडनली एक हाथ आता था, ऐसे खींच लेता था, नाम बताओ पहले इनका। कहते जी ये मेरे ख्याल में सुनील दत्त, नहीं सुनील दत्त नहीं, जाओ। तो वो इस तरीके से वो काफ़ी लोगों को गुमराह कर देते थे। अब एक दफ़ा वो शॉट में फंसे हुए थे और मेरे पास एक आदमी खामोशी से आया, जी आप ऑटोग्राफ देंगे? मैंने कहा दे दूँ। तो मैं देने लगा, शॉट छोड़ के मेरे पीछे भागा। मैं आगे जाके अपना नाम पूरे कैपिटल वर्ड्स में लिख दिया। मेरा मतलब कहने का यह था कि ही वाज सच ए लाइवली मैन and such an entertaining person on the set. He would keep a very, very happy atmosphere. It saddens me to see such great people are physically unable to do great work which they would have done now, with all their experience, with all everything. But I wish him a long life, and my congratulations to him. It is a very deserving award, which he should have got it a little earlier. But anyway, he got it. That's the greatest thing. Thank you. सर रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े स्टूडियोज़ के साथ, करण जौहर, फॉक्स, इरॉस, सबकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया था कि आउटडोर होर्डिंग्स पे पैसा स्पेंड नहीं करेंगे। तो इस पे आपका क्या राय है? इस पे आपके बिजनेस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि यू आर नोन टू हैव पुट द होर्डिंग्स। आपका क्या राय है सर इस पे? एक्चुअली पैसा तो लेता ही होना अभी तो कल 1 अप्रैल है और अप्रैल फुल बनाएंगे या सच्चे में अमल होएगा? नहीं सर, ये अप्रैल फुल जोक नहीं है सर, ये बहुत पहले आई थी ये न्यूज़। खबर है लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। अभी मैंने एक यूनिवर्सल का इंग्लिश पिक्चर का काम किया है, वायाकॉम मेरे से कोटेशन मंगा रहा है, टी सीरीज मंगा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं किया है। तो अभी 1 महीना ये लोग का यूनिटी चलेगा, शायद मैं भी थोड़ा टका बिजनेस। बट ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्शन को, स्टार का खर्चे और बाकी सब खर्चे कम करने चाहिए। पब्लिसिटी और ये तो उनके ज़बरदस्ती का तो है नहीं खर्चा, ये तो खुशी की बात है कि उनकी मर्जी से वो लोग बजट देते हैं और पीछे चलनी नहीं चलनी। बट आप मानते हैं कि स्टार्स के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो कम होना चाहिए? 100% प्रोडक्शन को, मतलब आउटडोर होर्डिंग्स पे नहीं होना चाहिए? वो तो नॉमिनल बजट रहता है, 25-50 लाख में 1 करोड़ की पब्लिसिटी मिलती है। Thank you very much, everybody. आपने इतने कलाकारों को मौका दिया अपने आरविजन कंपनी के थ्रू, इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के पीछे खास मकसद क्या है? इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमने स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। इसकी जो फिल्म की यूएसपी है इसकी स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट जैसा आजकल फिल्में चल रही हैं कि कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, स्टार कास्ट कोई मायने नहीं रखती है, तो मैंने कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया। बट फॉर्चुनेटली लकीली हमको अच्छे लोग मिल गए, लाइक गौतम गुलाटी मिल गए, प्रेम चोपड़ा जी मिल गए, आशुतोष राणा भी इस फिल्म में आज आए नहीं हैं। तो ओवरऑल जो फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म के स्टार कास्ट, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं इस फिल्म में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, ये फिल्म कुछ अच्छा ही करेगी। आपको सर मालूम है कि जो क्रिएटिव बिजनेस होता है, जो फिल्म बिजनेस होता है, वो सबसे रिस्की होता है। तो आर विजन का जो फिलॉसफी है कि नए कलाकारों को मौका देते हैं, तो उसमें कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है? अभी गौतम गुलाटी को आप मौका दे रहे हैं बड़े पर्दे पे, तो कितना आप ये समझते हैं कि रिस्क फैक्टर है ये? अब टाइम चेंज हो गया है। पहले एक टाइम था जो जब बड़े बड़े स्टार कास्ट होती थी, फिल्में नाम से चल जाती थी। आजकल वैसा टाइम नहीं है, टाइम चेंज हो गया है। आजकल बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में भी फ्लॉप होती हैं, और जो आजकल कंटेंट बेस्ड फिल्म होती हैं, जो रियलिटी पर बेस्ड होती हैं फिल्म, वही फिल्म चलती हैं। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, और हम लोगों की कोई बहुत, इट्स नॉट ए वेरी बिग बजट फिल्म, वी हैव वर्कड इन ए वेरी लिमिटेड बजट,
और हर एक इस फिल्म में एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ कि और एवरीबडी वांट्स टू गिव हिज बेस्ट इन दिस मूवी। तो ये एक बहुत अच्छी गौतम गुलाटी हमारे डायरेक्टर से एक बार उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसने कहा पहले आप मुझे स्क्रिप्ट सुनाओ। उसने कहा ठीक है। जब स्क्रिप्ट का नरेशन दिया तो ही वाज सो एक्साइटेड, बोला ये बॉस आपकी पहले, मेरे को और भी काफ़ी ऑफर्स हैं पर ये पहली फिल्म मैं आपके साथ करूँगा बिकॉज इसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है और बड़ी रोमांटिक कॉमेडी है ये और अच्छी फिल्म। Hello everyone, I'm playing a girl called Julia. I am going to be paired with Prem Chopra ji. I know it's a really odd couple, but it's going to be awesome. And most of the time, yes, I am only interacting with him. And there's a little twist to my character, which I don't think I can say it right now. But all you need to know is that I'm going to be playing alongside Prem Chopra, and I am thrilled about this. After a long time on the big screen, and this particular project, how come this came on? I know. Last thing I did was a character in Jeho, and now this role is much bigger, and I'm really happy. More than anything, I'm really excited to play to act alongside such a senior actors like I said, Prem Chopra and Ashutosh Rana. I mean, I'm so excited. I can't even tell you guys. So this is going to be fun. We're going to start shooting soon, and hopefully releasing this year. So any other projects in the pipeline after this? So you guys know I'm still shooting for comedy classes, right? On Life OK, so that's also fun. I love shooting that, but I think I'm going to dedicate a little extra time to the film now. Thank you. मेरा ड्रीम रोल जो है वो तो डिपेंड करता है लोग क्या देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे एक रोल गॉडफादर का मार्लन ब्रांडो ने किया था वैसा एक सेंट्रल कैरेक्टर मिले, जो कि इस फिल्म में मुझे उसके आसार नज़र आ रहे हैं। देखिए जब पिक्चर रिलीज़ होगी तो कितना होगा, क्या होगा, उड़न छू या तो हमें उड़ा देगा या फिर। प्रेम जी, आपका नाम विलन के तौर पे भी फेमस है और प्रेम वर्ड हीरो के तौर पे भी फेमस है, जो कि सलमान खान ने कई फिल्मों में अदा किया है, अभी फिर आ रहे हैं। इस प्रेम वर्ड से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप शब्द? प्रेम जो वर्ड है वो फिल्म प्रोड्यूसर्स बड़े कॉन्शियस इसके बारे में, जिसका नाम प्रेम रखेंगे वो पिक्चर ज़रूर कामयाब है। और साहब ने तो ये तमाम हीरोज़ का नाम प्रेम रखते हैं या विजय रख देते हैं। अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने की सोचा है प्रेम जी आपने? ऑफर तो काफ़ी आए होंगे लेकिन आपने नहीं किए जी? 4-5 कर चुका हूँ। एक तो द थ्रेड किया था जिसकी शूटिंग हमने अमेरिका में भी की जी और शिमला की थी। दूसरा एक 4-5 पिक्चरें की जो बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ की, और अमेरिकन एक्टर्स थे सारे, सिर्फ मैं इंडियन एक्टर था उसमें। और एक पिक्चर थी जिसमें मैं भी था और रोशन सेठ भी था, बाकी सब फॉरेनर्स थे। तो बहुत तजुर्बा अच्छा है। वहाँ भी काम करने का तरीका ये है कि साहब वो बड़े पंक्चुअल है। यहाँ कभी कभी हमारे एक्टर लेट भी आते हैं, वहाँ कभी बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर द सुपरस्टार और यू आर नॉट अ सुपरस्टार। लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट एकदम बराबर मिलेगा। लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है, यू हैव टू बी ऑन टाइम। तो शिमले में इतनी सर्दी में भी हम शूटिंग के लिए जाते थे दूर, कोई 6 या सुबह पहुँचना, बर्फ़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी everybody has to be there in the lobby by 5:30. So 5:30 everybody has to be there. If somebody misses to be there by 5:30, the cars will leave. Leave him alone. He'll have to come by taxi, but he'll have to be there. ऐसा है। यहाँ पर ये नहीं, they don't want to annoy actors, they don't want to annoy stars. वहाँ इसलिए लोग बड़े डिसिप्लिन्ड है। ये थोड़ा सा फ़र्क है जो हम इस इंडस्ट्री में लाना चाहेंगे, और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई है। अब यहाँ पर भी लोग जो पहले जो बाउंड स्क्रिप्ट नहीं होते थे, अब बाउंड स्क्रिप्ट होते हैं जी। विजुअल्स आ गए हैं, स्पेशल इफेक्ट्स आ गए जो पहले नहीं होते थे। आपने हॉलीवुड फिल्मों में अगर काम किया है तो हॉलीवुड में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का क्या दर्जा रहा है, मतलब क्या उनके व्यूज़ हैं बॉलीवुड के बारे में? देखिए वो तो एक जब हमने काम किया उसमें बहुत सी फिल्में थी, तो जब उनको बताया गया कि उन्होंने पूछा यार आपने मैंने कहा मेरा करियर के अबाउट 45 years to 50 years है दिस,
कितनी पिक्चरें कर चुके हैं आप? मैंने कहा 500. He was flabbergasted. 500 feature films you have done. I don't believe. मैंने कहा यार बिलीव कर ही लो, यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा लोगों ने किया हुआ है. तो ये जो था ये सारा तजुर्बा रहा. और उनकी ओपिनियन अभी अपने बॉलीवुड फिल्म्स के बारे में बड़ी चेंज हो गई. पहले तो बॉलीवुड एक्टर्स भी वहाँ जाना चाहते थे. आपके बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स हैं दोज हु हैव शोन इंटरेस्ट वर्किंग इन बॉलीवुड फिल्म्स, बिकॉज बॉलीवुड फिल्म्स आर रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट हैज़ ए मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड. थैंक यू सर, थैंक यू. बॉस से जब आप आए तो बहुत सारे ऑफर्स रहे होंगे, लेकिन उड़न छू को ही चुनने का क्या मेन उद्देश्य था? यार अभी कई चुने हुए हैं मैंने तो वैसे बट ये है कि अभी ये स्टार्ट पहले हो रही है, तो हम लोग पहले उड़न छू ख़त्म करना चाह रहे हैं कि चलो उड़न छू को अनाउंस करते हैं पहले, और फिर उड़न छू को ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा मेरा. सो अभी बस चल रहा है और लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है. बट आप लोगों की बस ब्लेसिंग्स चाहिए आगे. आपकी ब्लेसिंग से ही काम होगा यार. ये जिस तरीके से करियर आपका चल रहा है, या जिस तरीके से आप धारावाहिक के बाद बिग बॉस और फिल्मों में आ रहे हैं, कभी ऐसा सोचा था आपने कि इस तरीके से मैं इन फ्यूचर? मैंने ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था, बिकॉज इट्स अ टफ थिंग टू गेट इनटू फिल्म्स. इट्स नॉट दैट इजी टू लॉन्च योरसेल्फ अलोन. यू नो, अपने दम पर खुद को लॉन्च करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. तो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए. बट खुद एक बचपन से ही माइंड में था कि यार करूँगा तो अकेले ही करूँगा, कुछ करूँगा ज़रूर. यू नो, ऐसे हार नहीं मानूंगा कभी भी. सो बट एंड ऑफ द डे, टच वुड, इट्स हैपनिंग एंड आई हैव अ ग्रेट फीलिंग. आई फील ग्रेट अबाउट इट कि व्हाटएवर आई यूज्ड टू थिंक आई एम एबल टू डू दैट नाउ. बट ये भी लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है कि बिग बॉस में अगर मैंने जाने का एक डिसीजन लिया तो वो डिसीजन मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा. और इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ बिग बॉस, बिकॉज पीपल गॉट टू नो अबाउट मी एंड पीपल हैव गिवन सो मच ऑफ लव टू मी दैट उनकी ब्लेसिंग्स और उनका प्यार. आज मैं चाहे छोटे बच्चों से मिलता हूँ, या उनके मम्मी पापा से मिलता हूँ, या उनके भाई बहनों से मिलता हूँ, या उनके दादा दादी से मिलता हूँ, तो हर एज ग्रुप पसंद करती है और हर एज ग्रुप एक ब्लेसिंग्स देती है. तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्यार तो वही है. आगे चाहे फिल्मों में जो भी हो, बट मेरे लिए जो उन्होंने मुझे हीरो बनाया, जो मुझे प्यार दिए बच्चों ने या उनके माँ बाप ने या बड़ों ने, तो आई थिंक एक रियल लाइफ हीरो बनाना ही बहुत बड़ी बात है. और उन्होंने सपोर्ट किया है, वोटिंग की है, प्यार दिया है, 86% पे जिताया है शो. तो आई थिंक जो कि पूरे 8 सीज़न में आज तक नहीं हुआ. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई फील प्राउड कि यार इतना प्यार अगर उनका नहीं मिला होता तो शायद कुछ भी नहीं होता. बट इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पीपल एंड दे आर कनेक्टेड टू मी. एंड today I don't have to explain myself. Wherever I go, they just come and hug me and I hug them back. Because I don't think like that कि यार मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि you should be very real even with them, because only because of them you are there. So even I hug them back. Even if I don't know them, I hug them back. You know. So मुझे अच्छा लगा because I can understand their feelings when they जब वो मेरी feelings को समझ सके जब मैं घर के अंदर था, तो मुझे भी समझना चाहिए कि वो मुझसे प्यार करते हैं. तो मैं इसलिए आगे से जाता हूँ और कोई मेरी तरफ प्यार से देख भी रहा होता है, मैं कहता हूँ हे यू नो, तो मैं गले लगा लेता हूँ. सो आई रियली लव द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. गौतम, अगर फिल्मों की बात करें तो काफ़ी ऑफर्स तो आ ही रहे हैं आपको, लेकिन आप किसके साथ काम करना चाहते हैं? कोई ड्रीम डायरेक्टर है आपका? सी यार, ऐसे अगर आप सोचो तो वो चीज़ें फिर एक उसमें रह ही जाती है, बट सोच में ही रह जाती है. बट आई फील यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. अपने पॉइंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए. उसके बाद धीरे धीरे यू रीच देयर. देन ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से अपना बेस्ट काम करो, फिर चाहे आपको कोई भी मिले काम के लिए. एंड बट ये कि अपने काम में डेडिकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. सो ऐसे आई नेवर थिंक कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए या आई शुड वर्क विद देम, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करने लगोगे तो एक्सपेक्टेशंस टूटती बहुत हैं फिर आपकी. लाइफ में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना. मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ. जो भगवान दे रहा है, जो हो रहा है वो हो जाए, बेस्ट है. क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे लाइफ में, तो फिर झटका लगेगा, तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे. तो आप कहोगे यार क्या ये क्या हो गया. तो वो उस लेवल पे मैं आज तक कभी पहुँचा ही नहीं हूँ, ना कभी पहुँचूँगा. जो भगवान दे रहा है, नॉर्मल ज़िंदगी में भी खुश था और अभी भी खुश हूँ एक नॉर्मल तरीके से. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी अबाउट इट. पसंदीदा एक्टर, एक्ट्रेस और फिल्म के बारे में अगर आप बताएं जो आपके दिल के करीब है. मैं सलमान सर को बहुत पसंद करता हूँ कि ज़्यादातर सारी फिल्में मैंने देखी हैं. और शाहरुख सर को भी बहुत पसंद करता हूँ. उनका भी रोमांस जब देखने को मिलता है तो ही इज़ टोटली डिफरेंट. एंड व्हेन आई गेट टू सी हिज फिल्म्स
इज़ अ चार्मर एंड बहुत अलग बहुत चार्मिंग पर्सन है और लोगों के दिलों में बहुत प्यार है उनके लिए भी। सो और एक्ट्रेसेस में देखा जाए तो मुझे शिल्पा शेट्टी जी बहुत अच्छी लगती है। उनका काम मुझे आज भी अगर आप उनसे अगर कहीं मिलना हो जाता है तो शी इज़ एग्जैक्टली द सेम द वे शी वाज अर्लियर। आज भी आप देखो तो शी इज़ स्टिल द सेम। सो अभी भी अगर मेरा मिलना किसी से भी होता है तो व्हेन दे टेल मी नो आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट नो व्हाई। कोई भी एक्ट्रेस मुझे अगर बोलती है ना, आई डोंट बिलीव इट, मुझे बिलीव नहीं होता कि सपोज इफ समबडी सेज शिल्पा जी ने एक बार बोला चित्रांगदा वही चित्रांगदा जी ने जब बोला नेहा धूपिया टोल्ड मी आई एम अ फैन, सो आई डोंट बिलीव, मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि यार दे आर माई फैंस। व्हेन ज़रीन टोल्ड मी कि आई एम अ बिग फैन, सो आई डोंट बिलीव समटाइम्स। तो मुझे फिर अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार इट्स सो नाइस ऑफ देम टू इवन से दैट यू नो दे हैव बीन वर्किंग सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर बिग एक्ट्रेसेस एंड दे आर सेइंग दैट दे आर माई फैन। सो आई फील ग्रेट अबाउट इट और इतना प्यार इवन इंडस्ट्री से भी मिलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सलमान भाई का जिक्र हुआ, कोई फिल्म प्लान कर रहे हैं उनके साथ किसी तरह से? मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ यार? वो या कोई डायरेक्टर, आप जैसे पता है हमें कि सलमान भाई जो फिल्म मेकर्स, सलमान सर से प्यार इतना है कि दिल से कनेक्शन है। लाइक आई सेड, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता और ना ही कभी एक्सपेक्ट करना चाहिए, पर सलमान सर जिस दिन बुलाएंगे उस दिन आंख बंद करके चले जाऊँगा यार। तो अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं? अभी यार कैसे प्लानिंग, मैं कह रहा हूँ प्लानिंग कभी करनी भी नहीं चाहिए लाइफ में। और अभी बस ये है कि दिल से उनसे एक कनेक्शन है। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ दिल्ली दिल में। बट ये है कि कभी भी सलमान सर जो आदेश देंगे, बुलाएंगे कभी भी, तो आई डेफिनेटली वॉक अप टू हिम एंड क्यों नहीं यार, उनके साथ कौन काम नहीं करना चाहता। तो अगर वो बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊँगा मैं। गौतम, बायोग्राफीज का ज़माना है, किसी पर्टिकुलर इंसान की आप आत्मकथा का हिस्सा बनना चाहेंगे? लीड बायोपिक यार अभी पता नहीं यार उसके बारे में। यानी कोई पर्सनैलिटी जो आपके फेवरेट रहे हैं, स्पोर्ट्स में हो या crime में? स्पोर्ट्स में मेरे सचिन तेंदुलकर साहब बहुत, आई वुड से क्रिकेट में आई एम अ बिग फैन ऑफ सर सचिन तेंदुलकर। और उनका कौन फ़ैन नहीं है। You know, उन्होंने जो इंडिया के लिए किया है वो आई थिंक आने वाले टाइम पे भी कोई नहीं कर सकता। आज भी इतनी डिसेंसी के साथ वो कहीं पे जाते हैं तो उनका एक अलग ही एक तरीका रहता है। बहुत he's a classy and a very decent man, so I really respect him. किसी ने कभी आपको कौन किया है? कोई वाकया बताया अगर घर का या यहाँ का, मुंबई में? कौन किया? पागल बनाना, मतलब बेवकूफ़ बनाना, पागल बनाना, कुछ लेके बात यार। बिग बॉस नहीं देखा आप लोगों ने? बिग बॉस से पहले यार मैं सही बताऊँ, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ और जो कि कहते हैं ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा जल्दी किसी के ऊपर, बट फिर भी वो आदत है, अपनी फितरत नहीं बदल सकता ना मैं। कोई मुझे अगर प्यार देता है ना तो मैं आगे चले जाता हूँ प्यार देने उसको। यार मैं कहता हूँ चले यार प्यार मिल रहा है ना, कोई बात नहीं। तो यू नो, बट ट्रस्ट कर लेता हूँ उस चीज़ पे। कई बार टूटा है ट्रस्ट उस चक्कर में, बट ये है कि अभी भी मानता नहीं है दिल वैसे ही है मेरा। सो अगर कोई प्यार देता है तो मैं आगे से उसको प्यार ही देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये मेरी फितरत है, आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ। यू नो, कोई बात नहीं, हर्ट होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वो हर्ट हो जाएंगे, बट ये है कि एंड ऑफ द डे आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर एनी वन। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए कि ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी क्या है, नेचर ही ऐसा है यार कि अब ट्रस्ट कर ही लेता हूँ यार। यू नो, कोई भी हो, कोई प्यार दे रहा हो तो बिलीव कर लेता हूँ, बट कोई बात नहीं, इट डजंट मेक मी अ बैड पर्सन, यू नो। सो मतलब सलमान ने कहा था कि बिग बॉस के घर के भीतर कई सारे रिश्ते बनते हैं, लेकिन जब इससे बाहर निकलते हैं लोग तो कोई एक दूसरे को याद नहीं रखता है। आप अभी देखते हैं जितने भी लोग वहाँ पे थे, आपके दोस्त यार थे, फैक्ट है वो, सच है। सलमान सर ने जो बोला बिल्कुल फैक्ट है वो। आपको अब जैसे इवन इफ दोस गाइज वर अवेयर ऑफ इट, सो आई डोंट नो, बात नहीं हुई किसी से भी। पुनीत जी के अलावा मेरी अभी महक से बात होती है। महक इज़ अ नाइस गर्ल। महक से दोस्ती में बात होती है और पुनीत जी से बात होती है। बाकी किसी से बात एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल रहा। ऑन टॉप ऑफ इट यार, ही इज़ राइट अबाउट इट। क्या है, आप 4-4.25 महीना आप किसी के साथ रहते हो ना, फिर आपका मन नहीं करता 1 साल बाद देखने का किसी को भी कि यार नहीं बस बहुत देखा है, रोज सुबह अंडे बनाए इनके लिए, बहुत बैंड बजाई है, हाथों की वाट अभी तक लगी हुई है। तो पूरा अभी तक हेल्थ वाइज भी आई एम नॉट ओके। आज भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट ये है कि थोड़ा सा भी डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए। आई हैव सम टॉन्सिल प्रॉब्लम, सो
नॉट इवन गेटिंग रेस्ट यार, 2-4 घंटे की नींद मिलती है बस, दैट्स इट, बिकॉज ऑल दैट आई एम मीटिंग पीपल ऑन टॉप ऑफ इट, कॉन्सेंट्रेटिंग लिटिल बिट ऑन माई वर्कआउट एज वेल, एट द सेम टाइम काम स्क्रिप्ट भी पढ़ना, उसके ऊपर ध्यान देना। सो एक टाइम पे 2-4 चीज़ें आप कर रहे हो तो फिर हम थकावट की वजह से भी कई बार बीमार हो जाते, तो अभी बीमार हूँ मैं, दैट्स व्हाई अभी एनर्जी थोड़ी सी मेरी लो है। लो फील करते हैं तो किसे याद करते हैं? यार मैं हमेशा अपनी मॉम को फ़ोन करता हूँ पहले तो थोड़ा सा चार्ज हो जाता हूँ। जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करता हूँ, आई कॉल हर एंड स्पीक टू हर, और अच्छा फील करता हूँ। सो आई स्पीक टू माई भाभी, आई स्पीक टू माई मॉम एंड बस, और दे ओनली चार्ज मी यार, उनकी वजह से ही आप ज़िंदगी में, आप लोग भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो आज किस लिए काम कर रहे हो? इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि कल को you have to do things for your family because they charge you end of the day when you guys go back home, right? तो घर जाने से पहले आप सोचते हो उनके बारे में भी, तो that you have to do things for them. So this is how, अगर मैं कहीं लो होने लगता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, चार्ज होता हूँ, क्योंकि end of the day I think of them, उनके बारे में सोचता हूँ, उनको आगे ज़िंदगी में प्राउड फील कराने के लिए, तो I have to be charged. Thank you so much.